So leadership means what? Ones who take lead or ones who take initiative. That person is called as leader. Followership means what? The many people follow one leader. That is called as followership. So leadership is required different types of qualities at the same time. Followership is also required different types of qualities. So when we combine these two qualities at that time, different types of leaders are there. Some are autocratic, some are democratic. So different types of followers are there. So ship type of followers, then diamond types of followers. So all these types of followers are there, and all followers accept the leaders, and all the uh, followers must be led by must followers must be followed by the leaders, and leaders must take along all the followers with him. So there is proper relationship is required in case of leadership and followership. So four important things are required to combine these two uh, leaderships and followerships. So first is self-management. So they manage themselves well. So all the leaders are supposed to manage their self. Means what they must have vision, mission, and they must transfer it to the followers. Followers must have capacity to understand the vision, mission of leader and try to manage their self according to that. So this self-management is required in case of leadership and followership. Next is commitment. So they are committed to the organization and to the purpose, principle, or person outside themselves. So commitment means what? People are committed uh, to the leader, and leader is also committed to the people. Means what? Uh, leader generally gives different types of advices to the people and different types of commitment to the people. So that commitment must be followed by the or fulfilled by the leader. And so whatever commitment they have received, they are supposed to take follow up of that from the leader. So this is what give and take policy of commitment by the leader and commitment by the followers. Next is competence and the focus. So they build their exercise, expertise, and focus their efforts for the maximum impact. So leader is always try to cover a huge number of people and maximum part of the society. And if their focus is clear, then they can create maximum impact on the public. So prime minister, chief minister is having impact on whole India. Chief minister is having impact on his state. Corporate uh, corporator is having impact on his ward. So this is what according to the area they create impact of their leadership on the people. So this is competence and focus. And next is courage. So they are courageous, honest, and creditable. So if leaders are going to do anything, so all credit goes to them because of their initiative and encouragement, any good thing come into reality. So this is what courage. So all the leaders and followers are have they have courage, they are honest for their work, and because of that they get credit. So if we want to think about these two things in combination of each other, then self-management, commitment, competence, and focus and courage is important. Now next thing is motivation. What is mean by motivation? So BF's cleanup. Motivation in school learning involves arousing, per, persisting, sustaining, and directing the desirable behavior. So in short, we can say that motivation means to encourage people, direct them, or uh, involve them, encourage them, give promotion to them. It is
it is emotion, it is motivation to the people. Next is according to the Woodworth, motivation is the state of an individual which disposes him to certain behavior for seeking good. So that inner inspiration disposes or encourage that person to डिसाइड वन गोल एंड अचीव दैट गोल। ठीक है, तो मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? इंस्पिरेशन या तो मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं कि जो एक अंदर से बात हमारे आती है दिल से या दिमाग से, और जो हमें इंड्यूस करती है, इनकरेज करती है कि हम एक गोल डिसाइड करें और उस गोल को अचीव करें। तो उस चीज का मोटिवेशन हर एक व्यक्ति के अंदर से या बाहर से, दोनों भी तरीके से मोटिवेट वो होता है और उसे वो गोल अचीव कर सकता है, क्योंकि मोटिवेशन की वजह से। ठीक है, जैसे कि सपोज एक व्यक्ति को आईएएस ऑफिसर होना है, तो उसका माइंड और सोल उसे मोटिवेट करना पड़ता है कि मैं ये जरूर एग्जाम क्रैक करूंगा। एक्सटर्नल जो है उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोचिंग या तो उसके जो कोचेस हैं वो सब उसे इंस्पायर करते हैं, नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मदद करते हैं, और उसकी वजह से एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ वो मोटिवेट होके आईएएस बन जाता है। तो ये क्या है? इट इज रिलेटेड विथ इनर एंड आउटर encouragement to achieve the goal, that is called as motivation. So motivation is the process that initiates, guides and maintain goal oriented behavior. It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst and reading a book to gain knowledge. ठीक है, so यहाँ पे हमें पानी पीना है तो भी एक ये प्रकार का मोटिवेशन अंदर से आता है, हमें अगर नॉलेज चाहिए तो भी एक प्रकार का मोटिवेशन रीडिंग के लिए हमारे अंदर आता है। तो हर एक चीज के लिए हमें मोटिवेट हम अंदर से होते हैं या बाहर से हमें किया जाता है। सो इट इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इज कॉल्ड एज मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द biological, emotional, social and cognitive forces that activate behavior. So in everyday uses, the term motivation is frequently used to describe why a people does something. It is driving force behind human action. तो एक व्यक्ति ये चीज क्यों कर सकती है, ये जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स है वो हर रोज उठ के इतना ज्यादा काम करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? इसका जो आंसर है तो ये है मोटिवेशन। या ड्राइविंग फोर्स क्या है? पैसे की वजह से पद, पैसा, प्रतिष्ठा चाहिए, इसके लिए मोटिवेशन क्या है? पैसे है, पद चाहिए, पैसा चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, इसे ड्राइविंग फोर्स कहा जाता है। किस चीज के लिए और क्यों ये आप कर रहे हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मोटिवेशन। ठीक है, तो ये मुझे अगर पैसे मिलते हैं हर महीने काम के, तो मैं मोटिवेट होके काम कर सकता हूँ। मुझे पॉपुलैरिटी मिलती है, मुझे कोई पोजीशन मिलती है, तो ये एक मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन अगर हर एक व्यक्ति को मिलता है तो वो मोटिवेट होके काम करता है। Next is motivation does not just refers to the factors that activate behavior. It also involves the factors that direct and maintain this goal-directed action. Such motives are rarely directly observable. As a result, we often have to infer the reasons why people do the things that they do based on the observable behavior. ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है कि ये सिर्फ एक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो ये एक ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर भी है। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करने के लिए बाहर घर से जाते हैं, तो घर में अकेले करते हैं तो हमारा मोटिवेशन अलग होता है, पर जब हम बाहर जाते हैं तो लोगों को देखकर हम मोटिवेट होते हैं और ज्यादा एक्सरसाइज करने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो हर एक मोटिवेशन ऐसे होता है, निगेटिव और पॉजिटिव वेव्स हमारे माइंड में क्रिएट करता है। अगर लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे भी लगता है मैं एक्सरसाइज करूं, अगर लोग बैठे हैं तो मुझे भी ऐसे कभी लगता है कि मैं बैठ जाऊं, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज व्हाट
The motivation change according to the observations of the people. तो लोगों को आप कैसे देखते हो, लोग आपको क्या बताते हैं, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपको क्या सजेशंस देते हैं, और आप वो कितना सीरियसली लेते हो, इसके ऊपर डिपेंड है कि आपका गोल सेट जो किया है वो अचीव होगा या नहीं होगा। इसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन मिला तो आप सक्सेसफुल होते हो, निगेटिव थॉट्स अगर है तो डीमोटिवेट हो जाते हो। नेक्स्ट इज बेसिक क्लासिफिकेशन है मोटिवेशन का। फर्स्ट इज प्राइमरी और बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स। So it includes food, water, sleep, sex, etc. So these needs arise out of the basic psychology of the life, and they are important for the सर्वाइवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, तो जो खाना पीना उठना बैठना ये सब जो चीजें हैं वो हमें बेसिक है, सर्वाइवल जीने के लिए हमें लगती है। तो टाइम पे हमें भूख लगती है, रात को हमें नींद आती है, ये सब क्या है, प्राइमरी बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स है उसके लिए हम मोटिवेट होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी नीड्स है, दे रिप्रेजेंट्स नीड्स ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। फॉर एग्जांपल सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ असर्टेशन। तो सेकेंडरी में आता है कि जो माइंड से या स्पिरिट से रिलेटेड होता है, जहाँ में हमें ईगो होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, खुद के एक विचार करने की पद्धति होती है, हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है ये हमें ठीक से पता होता है, घर की ड्यूटीज क्या है, जॉब पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये जो एक नीड है, सेकेंडरी नीड, दैट इज ऑल्सो मोटिवेशन। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक क्या है, द नेचुरल टेंडेंसी टू सीक आउट द स्क्वायर challenges, conquered challenges as we pursued personal interest and exercise capabilities. When we are intrinsically motivated, we do not need incentives or punishments because the activity itself is rewarding. तो इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, जो मोटिवेशन हमारे माइंड या सोल से आता है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब जो हम खुद से मन से डिसाइड करते हैं कि हम मुझे ये करना है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का इंसेंटिव की भी जरूरत नहीं है और पनिशमेंट की भी जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल अवार्ड की भी जरूरत नहीं है, हम वो खुद करते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज पता है तो आप हर रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, या तो इसके लिए आपको किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। जो चीज आप खुद डिसाइड करते हो और करते हो, उसे किसी भी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसे कहा जाता है इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आता है। On the other hand, if we do something in order to earn the grade, avoid punishment, or for some other reason that had very little to do with the task itself, then it is known as extrinsic motivation. So जिस काम को हमें अगर ग्रेड चाहिए, मार्क्स चाहिए, हमें पनिशमेंट होगी, या तो पनिशमेंट अवॉइड करनी है, या मेनी अदर रीजंस लाइक मैंने जैसे आपको बताया पोजीशन है, पैसे है, पॉपुलैरिटी है, ये सब चीजें हमें अगर मिलेगी तो ही हम जो काम करते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन कहाँ है, बाहर से आता है। मुझे अगर अगर अवार्ड दिया तो ही मैं अच्छा काम करूंगा, या तो मुझे वो अवार्ड मिलेगा तो ही मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। तो ये जो है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो सोसाइटी ने, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ने आपके काम को रिकॉग्नाइज करके आपको रिवॉर्ड अवार्ड दे, ऐसी जॉब की मांग होती है, उसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो हर एक व्यक्ति का इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन अलग होता है। कुछ व्यक्ति सेल्फ इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो जिन्हें किसी भी एक्सटर्नल मूवीज है, बुक्स है, मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो नया काम और खुद का काम करते रहते हैं। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिनके पास होता है, तो उन्हें बाहर की चीज ज्यादा
अगर उन्हें अवेलेबल है तो ही वो मोटिवेट होते हैं, जैसे कि मूवी को जाना, होटल में खाना, या तो पब में जाना, डांस पार्टी में जाना, बर्थडे पार्टीज पे जाना, ठीक है, सेलिब्रेशन करना, ये सब चीजें अगर वो करते हैं तो ही वो मोटिवेट होते हैं। तो ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। So with the help of this image, you can understand. One, this boy is playing for the cup, and second boy is playing for the joy. So extrinsic motivation means what? Motivated to perform an activity to earn the reward or avoid the punishment. तो इस जो ये जो स्टूडेंट है या तो ये जो प्लेयर है, तो उसे टेंशन है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे लोग लूजर कहेंगे, अगर मैं जीत गया तो मुझे ट्रॉफी मिलेगी, तो कुछ भी हो जाए मुझे जीतना है। ये जो मोटिवेशन होता है इसे कहते हैं इंस्ट्रिंसिक। अब ये जो है इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, सो मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक एंड पर्सनल रिवॉर्ड। तो ये जो व्यक्ति है इसे टेंशन नहीं है क्योंकि वो खुद को प्लेजर मिले, खेलने का आनंद उठा सके, इसके लिए वो खेल रहा है। तो ये इनर मोटिवेशन है। इंस्ट्रिंसिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और जो एक्सट्रिंसिक है जिसे प्रेशर होता है कि मुझे जीतना है या मैं हार जाऊंगा। यह है इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रिंसिक में क्या क्या आता है, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ। अगर आपके पास इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन है तो क्या होता है, आप एंजॉय कर सकते हो, पर्पस आपका फुलफिल होता है, ग्रोथ होती है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, पैशन जनरेट होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन आप उसमें दे सकते हो, और फन आप उस चीज का आनंद उठा सकते हो। और अगर एक्सटेंसिव मोटिवेशन आपको है तो उस केस में क्या होता है कि प्रमोशंस है, पे राइजेस है, बोनस है, बेनिफिट्स है, प्राइसेस है, विनिंग्स है एंड पर्क्स है। तो ये सब चीजें अगर मिलेगी तो ही आप अ, अ, बाहर से इंस्पायर होते हो, और अगर ये सब चीजें हैं तो आप अंदर से इंस्पायर होते हैं। तो ये जो दोनों भी मोटिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है। आप में आप पैशनेट भी होने चाहिए और आपको प्राइसेस भी मिलने चाहिए। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम ज्यादा सक्सेसफुल या ज्यादा मोटिवेट इंस्पायर हो सकेंगे। सो दिस इज व्हाट इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट इज मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, तो नीड्स की जो हायरार्की है वो मॉस्लो ने कैसे बताई है वो देखेंगे। ये जो 5 नीड है तो उसमें से फर्स्ट नीड इज साइकोलॉजिकल, सेकंड इज सेफ्टी, second is love and belonging, next is esteem, next is self actualization. So every person want have these needs, and according to his mental status that needs increase day by day, and it according to its maturity the needs change. तो हर एक व्यक्ति का मैच्योरिटी क्या है, उस विचार क्या है, वो किस तरीके से जीता है, इस हिसाब से उसके नीड्स जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स, इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। ये तो हर एक व्यक्ति को होता ही है, तो साइकोलॉजिकल नीड्स सबको होती है। सेफ्टी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो हर एक व्यक्ति को अ, खुद सुरक्षित है या नहीं इसके बारे में चिंता होती है। एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी, प्रॉपर्टीज आपकी सेफ हो, इसकी आपकी एक जरूरत है। हेल्थ आपका अच्छा हो, ये भी आपकी एक जरूरत है। प्रॉपर्टी आपकी सेफ रहे, ये भी आपकी एक नीड है। तो ये आती है सेफ्टी नीड में। नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंग्स। तो फ्रेंडशिप, इंटीमसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये जो एक नीड है हर एक व्यक्ति की, कि आप सबको फ्रेंड्स होते हैं, सबके फैमिली मेंबर्स आपके लिए टाइम देते हैं, आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है लोगों के साथ, लव एंड अफेक्शन आप सबके साथ रखते हो, तो ये जो है ये भी एक नीड है। उसके बाद एस्टीम है, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। तो हर एक व्यक्ति को ये सब
चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक स्टेटस होता है, उसी स्टेटस के साथ वो रहता है, उसके कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, वीकनेस होते हैं। लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये मेरी मांग होती है। तो ये आती है सेल्फ एस्टीम में। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सो डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन डू। तो जो जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, ये जो इस व्यक्ति को समझ में आता है और उस तरीके से वो काम करता है, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या तो सेल्फ रियलाइजेशन पोजीशन। तो ये सभी नीड्स जो है वो हर एक व्यक्ति के पास होती है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल नीड्स। सो these are biological requirements for human survival: air, food, drink, water, shelter, clothing, warmth, sex, and sleep. If these needs are not satisfied, the human body cannot function optimally. Maslow considers the psychological needs the most important as well as all other needs because secondary until these needs are met. तो अगर ये सब चीजें हमें मिलती है तो हमारा जो शरीर है वो ठीक से चलता है, और अगर ये बेसिक नीड हमारी फुलफिल होगी तो आगे की नीड हम अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड्स। सो वंस एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, the needs for security and safety becomes silent. So people want to uh, experience order, predictably, and control in their lives. So these needs can be fulfilled by the family and the society. For example, police, schools, business, and medical care. So, for example, emotional security, financial security, employment, social welfare, law and order, freedom from fear, social stability, property, health, and well being. That is safety against accidents and injury. तो ये सब है सेफ्टी नीड्स में। तो अब लीगल इशू हो तो लॉयर है या तो कोर्ट है, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस है या तो हॉस्पिटल्स है, या तो जो सब सिस्टम सोसाइटी में खड़ी की गई है वो क्या है, सब सेफ्टी नीड्स। तो हर एक व्यक्ति खुद को सेफ रखना चाहता है, उसके फैमिली को और पूरी सोसाइटी को सेफ करने के लिए लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गवर्नमेंट ने खड़ी की है, जिससे हमारी सेफ्टी नीड्स जो है वो फुलफिल होती है। नेक्स्ट इज लव एंड belongingness needs. So after psychological and safety needs have been fulfilled, the third level of human needs is social and involves feelings of belongingness. So belongingness refers to an human emotional needs for interpersonal relationship, affiliating and connectedness, and being part of a group. For example, a belongingness needs includes friendship, intimacy, trust, acceptance, receiving and giving affections and लव। ठीक है, तो ये क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये भी एक हर एक व्यक्ति की नीड होती है। तो अ, हम लॉकडाउन है, घर में भी है, फिर भी हम फोन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और इमोशनल जो हमारी नीड है वो फुलफिल करते हैं। तो इसे कहते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। हर एक व्यक्ति को ऐसे लगता है कि कोई मुझे अपना कहे, मुझसे प्यार से बातें करे, अच्छा रिलेशन हमारा एक दूसरे के साथ हो। तो फैमिली, फ्रेंड्स, हर एक रिश्ते में ये नीड कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स आर द फोर्थ लेवल ऑफ Maslow's hierarchy and include self-worth, accomplishment and respect. Maslow classified the esteem needs into two categories: esteems for oneself, dignity, achievement, mystery, independence, and the desire for reputation or respect from others, that is status and justice. तो ये जो एस्टीम नीड्स है उसमें दो टाइप है। एक तो आपके खुद के लिए, तो आपके खुद के विचार, खुद की सोच, आपका अलग अस्तित्व, ये आप एक मानते हो। और दूसरी बात, दूसरों से रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट। ठीक है, फैमिली में आपको रिस्पेक्ट मिले, ये आपकी इच्छा होती है, उसे कहा जाता है सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट इज लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ Maslow's hierarchy and refers to the realization of the personal potential and self fulfillment, seeking personal growth and peak experiences.
Maslow described this level as the desire to accomplish everything that one can be to become the most that one can be. तो ये लास्ट स्टेज है जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो मेरा गोल क्या है, मुझे इस दुनिया में आके क्या करना है, ये जिसे रियलाइज हुआ है उसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके पास सब है, पैसा है, पॉपुलैरिटी है, जो भी उन्हें चाहिए वो सब उन्होंने उनके जिंदगी में कमाया है, तो इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो ये 5 नीड्स है रिलेटेड टू द मॉस्लो थियरी। सो दिस इज व्हाट related with Maslow hierarchy need theory.